Hello guys, welcome to my YouTube channel. So today our topic is prove that root 2 is a rational number and root 3 is a rational number. We have to give a proof. So before going to discuss these proofs, first of all we need to know theorem 1.3. So let's check what is the theorem 1.3 here. Let P be a prime number if P divides a square where a is a positive integer. We know that what is a positive integer? What is an integer? We have a negative and positive values along with 0, that is an integer. In that we need a only positive integer. That is, we need plus values like 1, 2, 3 and so on. Okay, then P divides a. See here, what is the main theme of this means if P divides a square, then P divides a. What is the meaning of this? So here we given a proof that is a is equal to P1, P2 and so on Pn, where what is a P here? P is a prime numbers. So if we do a square, then we get a P1 square, P2 square, Pn square. And basically you can understand this. But main thing we have to know that if P divides a square, then P divides a. Mainly proof what we think about means, see here, what is here saying? We know that P is a prime number. P is a prime number. And what he is saying, if P divides a square, then P divides a. That is, so many students will think like P divides a square means P by a square. This is the wrong way. So we have to write a square divides P. Okay, this is the right way. Okay, next, if P divides a square like this, P divides a square, that means then P divides a, that means a by P. How we can satisfy this condition? So this is very important to know to prove root 3 and root 2 is a irrational proofs. Okay, let's take P, that means prime number. You have to take any prime number. I am taking P as 5. Okay, and let A. What is A here? What is A here? A is a positive integer. We have to take any positive integer. Now I am taking A is also 5. A is also 5. Take as it is, as you wish. Okay. So now what we have to prove? We have to take this A square by P. A square by P, that is equal to, what is A here? 5. 5 square divided by, what is P here? 5. Okay. 5 square means 25 divided by 5. Okay. Get it. Next, what we have to know? P divides A. A divided by P. What is A here? 5. What is P? 5. So what is this means? P divides A square. Yes, we can satisfy how? 5 ones are 5, 5 5s are 25. That implies P divides also A. Yes, we can. It will satisfy because 5 ones are 5. Is it right? Are you getting or not? Why I am cancelling here? See, if we do division, 5 5s are 25, we get remainder 0. Then it will satisfy. Understand? Let's take any other example. For example, P take 2, and 2 is a prime number, right? And A will take 36. Because this is a positive integer, 36 is a positive integer, right? So what we have to find? If P divides A square, that implies P divides A. P divides A. If P divides A square, then P divides A. Is this the condition is satisfied or not? Let's check. What is A here? A is 36 square. Why don't we write 36 into 36? Divided by, what is P here? 2. Okay. Okay. Why don't we cancel this? 2 ones are 2. 2 ones 2. Remaining 1 are there. 2 8s is 16. If you multiply, we get an answer.
Is it right? And that implies what is a here? 36 divided by 2. 2 ones are 2, 2 18. You get 18 answer. This is also divisible. समझ आया आपको? So क्या कहता है इधर? What he is saying in the question means if p divides a square then p divides a. देखिए ये प्राइम नंबर किधर है? इधर. ये प्राइम नंबर ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और प्राइम ये ही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड कर रहा है. होगा ना? प्रूफ अब दिखाई ना मैंने. समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट प्रूफ्स कर देंगे जो हमने एक्सरसाइज 1.4 सॉरी थ्योरम नंबर 1.4 कर देंगे. थ्योरम नंबर 1.4 क्या कह रहा है? रूट 2 इज irrational number. irrational number prove करना चाहिए. prove that. prove. So before going to discuss this root 2 is irrational number, what is a irrational number? First of all, what is a irrational number? क्या होता है irrational number? Okay, before going to think irrational number, first of all we know about the rational number. rational number क्या होता है? रेशनल नंबर p by q फॉर्म होता है कि नहीं? q इज नॉट इक्वल टू 0 बट p एंड q इंटीजर्स होनी चाहिए. इंटीजर्स मतलब क्या है? माइनस वैल्यूज एंड प्लस वैल्यूज मस्ट बी प्रेजेंट. ओके. एंड व्हाट अबाउट इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स व्हाट अबाउट इरेशनल नंबर्स? जो इरेशनल नंबर्स होते हैं क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर्स नहीं होंगे तो p by q फॉर्म नहीं आएगा. p by q फॉर्म नहीं आएगा. समझ गए? जो रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं? रूट 2 और रूट 3 और रूट 7. क्यों मैम रूट 4 नहीं होगा क्या? इरेशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि रूट 4 को हम कैसा लिख सकते हैं? हाउ वी हैव टू राइट फॉर रूट 4 इज 4 वी कैन राइट इट एज 2 स्क्वायर. सो एब्सोल्युटली वी कैन square root will cancel and we get 2 the answer. Are you getting? तो आपको irrational नंबर मालूम हो गया है. तो चलिए प्रूफ कर देंगे कि रूट 2 irrational क्यों होगा. सो आपको पता है कॉन्ट्रडिक्शन फॉर्म लेते हैं ना. चलिए आप समझ जाओगे करते करते. लेट सपोज हमने क्या करना है? रूट 2 इरेशनल बताना है. व्हाट वी हैव टू शो? रूट 2 इज इरेशनल. क्यों ना हम इसको रेशनल लेके कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ कर सकते हैं ना. क्या होता है ये कॉन्ट्रडिक्शन? मतलब ये रूट 2 रेशनल नंबर गलत है, ये रूट 2 रेशनल नंबर लेके हम ये रेशनल नंबर गलत साबित करने के बाद रूट 2 इरेशनल नंबर बता सकते हैं ना. वो कैसे कर सकते हैं मैम? क्या आप बता सकते हो? या ऑफ कोर्स आई कैन शो यू. सो देन सपोज हम क्या कर सकते हैं? रूट 2 को क्या मतलब ले सकते हैं? रूट 2 इज ए रेशनल नंबर. और ये रेशनल नंबर कैसे होगा? p by q फॉर्म होगा. राइट? मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म होगा. p by q मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म होगा. क्यों ना हम रूट 2 इज इक्वल टू रेशनल नंबर है ना, तो हम a by b ले सकते हैं ना. रूट 2 इज इक्वल टू a by b. Here A and B are co-primes. अरे भाई फिर ये co-primes कहाँ से आ गया? What is a co-prime? देखिए what is a co-prime means समझ जाइए आप. ये इज इक्वल टू 1 लेते हैं और B इज इक्वल टू 2 लेते हैं. इसको आप HCF करो. HCF ऑफ 1,2 क्या आएगा रिजल्ट? 1 ही ना. समझ गए आप? रिजल्ट क्या आएगा? 1 ही आएगा ना. कुछ भी लो A एंड B कुछ भी लो आपको HCF 1 ही आना होगा. वी हैव टू गेट HCF एज 1 itself. दैट इज अ co-prime. आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? ओके समझ जाओगे आप धीरे धीरे. नेक्स्ट तो ये भी आके co-primes होगा. एंड मैं ये इधर डेफिनेशन भी लिख देती हूँ कि AB are co-primes, that is
and have no common factors. Have co-primes and have no common factors. No common factors other than one. ये co-prime का मीनिंग है, समझ गए? अदरवाइज आप एग्जाम्पल ले सकते हो, नो प्रॉब्लम फॉर दैट. ओके, चलिए अब नेक्स्ट करेंगे कि √2 इज इक्वल टू ए बाई बी है ना इधर, जो हम क्या कर सकते हैं, इसको b को इधर ले जाइए, क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए, b इंटू √2 इज इक्वल टू ए होगा ना. चलिए हम इसको अब स्क्वायरिंग कर देते हैं. स्क्वायरिंग करते तो क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर. आएगा कि नहीं? आएगा ना. ओके ओके, नेक्स्ट तो b स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये इंटू में कर रहा है तो हम इसको राइट साइड ले जाने तो क्या होगा, ये डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 2. समझ गए? तो इधर का मीनिंग क्या है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर. मैंने पहले ही कहा था ना, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स ए. अब इधर समझ जाइए, 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो देन तो क्या होगा, 2 ए को भी डिवाइड करेगा ना. समझ गए हो? इधर देखिए, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज, और देन 2 डिवाइड्स ये होगा ना, ऊपर की कंडीशन में एब्सोल्युटली होगा. 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर होता तो 2 डिवाइड्स ये आल्सो, दैट इज, जो कैसे लिखेंगे हम ये बाई 2. इसका रिजल्ट सोचिए, सी आर योर नेम एज इट इज सी. मैंने अब इसका रिजल्ट सी लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, डी ई एफ एनीथिंग यू कैन अंडरस्टैंड. तो ये क्या आएगा आंसर, ये इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 इंटू सी, 2c. ये का वैल्यू कितना आया है, 2c आया है. समझ गए आप? चलिए अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये का वैल्यू को. क्या आएगा, ये इज इक्वल टू 2c. ओके, सो हमको पता है इधर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर है ना. इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 1 ले लो, इधर आइए. फ्रॉम 1 क्या है, 1 में ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर. चलिए ये का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा. व्हाट इज ये वैल्यू, 2c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर. सो व्हाट इज 2 स्क्वायर, 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर. ओके, व्हाई डोंट वी कैंसिल हियर. जब भी ये इक्वल टू में ऐसे नंबर्स रहते हैं ना, ये दोनों ऑपोजिट वाले होते हैं, जब ऐसे होते तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. जब क्या होगा, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर. समझ गए आप? अदरवाइज वॉरर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, जस्ट रिवर्स लिखा है. इक्वल टू होता है तो सेम ही है ना, इधर से लिखो उधर से लिखो, एज इट इज सेम ही होगा, नो फिकर. सो इधर देखिए अब क्या होगा, सी स्क्वायर निकाल सकते हो क्या हम, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इस 2 को लेफ्ट साइड आना होगा तो क्या करेगा, ये डिवाइड में आएगा, तो 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर. ओके, व्हाट इज दिस मीनिंग हियर, इफ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन क्या होगा, 2 also divides b, है कि नहीं, होगा कि नहीं. हमने ऊपर 1.3 थ्योरम में प्रूफ कर ही लिए. ओके, इधर देखिए क्या हो रहा है, इधर वैल्यू डिवाइडेड, इधर नीचे का वैल्यू 2 है और इधर भी 2 है कि नहीं. 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है. इज इट राइट? हियर 2 इज डिवाइडिंग फॉर a एंड 2 इज ऑल्सो डिवाइडिंग b. बट हमने क्या प्रूव करना था, एंड ए एंड बी आर को प्राइम्स बताना था. को प्राइम्स का मतलब क्या है, ये एक ही फैक्टर आता है जो HCF 1 होगा, बट इधर 2 फैक्टर्स आते हैं ना,
क्या है कोप्राइम्स का, एंड हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन, ओनली वन ही कॉमन फैक्टर रहना चाहिए। बट यहाँ इधर देखिए 2a को भी डिवाइड कर रहा है और 2b को भी डिवाइड कर रहा है, तो कैसे पॉसिबल होगा ये √2 रेशनल नंबर, हम सब जो कुछ भी हम समझे, समझ गए ना आप। फिर देखिए सो 2 divides both a and b, है कि नहीं, 2 both divide a and b हो रहा है, that implies a and b have at least one common factor, at least one common factor, and this is a contradiction, and this is a contradiction. क्यों कॉन्ट्रडिक्शन है, इधर तो कॉमन फैक्टर आ ही जाते हैं ना, 2b को भी डिवाइड कर रहा है, 2a को भी डिवाइड कर रहा है, ऐसा कोई तरीका है, 2 ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि 2 को कोप्राइम समझे हैं हम, बट एक गलत दिखा रहा है ना, तो हम क्या समझ रहे हैं, √2 इज रेशनल नंबर समझ रहे हैं, तो √2 रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, √2 रेशनल नंबर नहीं होता तो क्या होगा, ऑफ कोर्स √2 रेशनल नंबर ही होगा ना, समझ गए। तो दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, दैट इज √2 इज रेशनल नंबर, √2 इज रेशनल नंबर, हेंस क्या होगा, √2 इज इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। चलिए ऐसे ही हम √3 को कर देंगे, लेट्स स्टार्ट, √5 इज इरेशनल नंबर, वी हैव टू प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। चलिए हम ये तो प्रूफ करके दिखाएंगे, तो आपको होमवर्क करना होगा कि √3 इज इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना। जो कोई स्टूडेंट्स करते हैं ना, तो आप मैसेज रख दीजिए, मैम आई डन, आई विल फील वेरी हैप्पी फॉर दैट, अंडरस्टैंड। चलिए कर लेंगे, पिछली तरफ से ही √5 इज रेशनल नंबर लेंगे, और रेशनल नंबर लेने के बाद क्या है, a/b लेंगे, व्हाट इज अ रेशनल नंबर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, व्हाई डोंट वी, फ्रैक्शनल फॉर्म में ही ना, तो a/b लेंगे हम, आपको चाह तो p/q ही ले सकते हो, एज यू विश, तो मुझे तो a/b पसंद है, तो a/b, हियर a/b, a एंड b क्या होता है, कोप्राइम्स होते हैं, क्या है ये कोप्राइम्स, इट हैज नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, समझ गए, मतलब HCF क्या होनी चाहिए, ओनली 1 ही आनी चाहिए, पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने, ये 1 होगा तो b 3 होता है, तो HCF ऑफ 1 and 3 क्या होता है, तो 1 ही होगा ना HCF, कुछ भी लो a and b, ऑफ कोर्स ये कोप्राइम्स ही होनी चाहिए, मतलब HCF 1 होनी चाहिए, अगर ये कुछ भी लो, ये 2 लो, b कुछ भी लो, तो हमको 1 ही आनी चाहिए, इसको नो कॉमन फैक्टर्स हरगिज नहीं आनी चाहिए, समझ गए आप। चलिए अब √5 को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना इसको, b इंटू √5 इज इक्वल टू a, उसके बाद हम भी स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आएगा, ये b² इंटू √5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a², ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, क्या आएगा इधर, 5b² इज इक्वल टू a², हम इसको इक्वेशन 1 मान लिए, ओके। तो b² को बाहर निकालो, और ये 5 क्या होगा, राइट साइड पे जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा, a² 5, इसका मीन क्या है, दैट इज 5 divides a², that implies 5 divides a², then 5 divides also a, है कि नहीं, आपने थ्योरम में पढ़ा है, ये p divides a², then p also divides a, इधर देखिए 5 प्राइम ही है ना, कंडीशन सेटिस्फाई होगा, है कि नहीं, इसका मतलब क्या है, 5 divides also a का मतलब क्या है, a divides p, है कि नहीं, तो दे दिए हमने c, इसको रिजल्ट कुछ भी मान लो, इधर d e f और आपका नाम भी रख लो, कोई बात नहीं, ओके। अब इसका वैल्यू हमने इस पे पुट करते हैं, सॉरी हमें अभी इसको ये निकालना होगा, ये इज इक्वल टू 5c, ये इज इक्वल टू 5c, ओके। अब इसका वैल्यू हमने फ्रॉम 1 में रख देंगे, फ्रॉम 1 में क्या है, 5b² इज इक्वल टू a²,
5b square is equal to, what is a here? 5c. 5c whole square. 5b square is equal to 5 square what? 5 into 5 that is 25c square. चलिए हम कैंसिल कर देंगे. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25. b स्क्वायर क्या आया है? b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर. समझ गए ना आप? तो c स्क्वायर को बाहर निकालो. c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 5. होगा ना? होगा ना? इधर देखिए, इधर भी 5 डिवाइड कर रहा है, इधर भी 5 डिवाइड कर रहा है. कैसे हो सकता है? दो बार डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि ए एंड बी क्या होते हैं? हमने बताया था ए एंड बी क्या होते हैं? को प्राइम्स होते हैं. इसका तो सिंगल फैक्टर होनी चाहिए, बट ये नंबर 5 क्या है? ये प्राइम नंबर तो 2 टाइम्स डिवाइड कर रहा है. ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है. ये कैसे हो सकता है? समझ गए? कैसे हो सकता है? देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं इधर? Here 5 divides both A and B. Both A and B. Hence 5 is a factor of A and B. तो 5 आगे A को भी फैक्टर है, B को भी फैक्टर है. ऐसे नहीं होनी चाहिए ना. समझ गए आप? ओनली सिंगल फैक्टर होनी चाहिए, वो भी 1 ही आनी चाहिए. 1 ही आनी चाहिए. कोई और नंबर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि वो को प्राइम है. समझ गए? एंड हेंस क्या करेंगे हम इधर? एंड आवर अजम्पशन का मतलब क्या है? इमेजिनेशन. हमने क्या इमेजिन करा है इधर? रूट 5 इज अ रेशनल प्रूव करा है. आई मीन इमेजिनेशन क्या करा है? रूट 5 इज अ रेशनल इमेजिन करा है. बट ये रॉन्ग निकला, क्योंकि 2 फैक्टर्स है. तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग होगा ना. इज रॉन्ग. Therefore by contradiction, root 5 is rational. Root 5 is irrational. क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन है. रूट 5 रेशनल तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये को प्राइम नहीं है. क्यों को प्राइम नहीं है? ये तो 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है. 5 आल्सो डिवाइड्स बी एंड हियर 5 आल्सो डिवाइड्स ये. ऐसे कैसे हो सकता है? ये रॉन्ग है. तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग होगा. रूट 5 इज अ रेशनल नंबर. तो हम डेफिनेटली लेंगे कि रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर. So thanks for watching this video, and don't forget to do your homework, that is prove that root 3 is irrational number. And don't forget to give a comments. Ma'am, I done. Just I need a simple comments, that is ma'am, I done. I feel very happy. That's it. So thanks for watching, and don't forget to like my video. Thank you. Bye.